7 اکتوبر 2023 کو غزہ میں اسرائیل کی جارحیت نے نہ صرف فلسطینی عوام کی زندگیوں کو مفلوج کیا بلکہ دنیا کو ایک نئی قسم کی بربریت اور خون ریزی کا مشاہدہ کروایا۔ اسرائیل کی فوج نے جنگ کے آغاز کے ساتھ ہی غزہ کے بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنانا شروع کیا، جس میں عورتیں، بچے، بزرگ اور معذور افراد بھی شامل تھے۔ اسرائیلی فضائی حملوں نے غزہ کے شہر، قصبے، ملبے کا ڈھیر بنا دیے۔ جہاں کبھی زندگیاں رواں دواں تھیں، اب وہاں سوگ اور تباہی کا راج تھا۔ غزہ کی سرحدوں سے باہر دنیا کی نظریں ماضی کی طرح اس بار بھی اس بربریت پر خاموش رہیں، لیکن یہ حملے اس قدر شدید تھے کہ اسرائیل کی ظلم کی حقیقت چھپانا ناممکن ہو گیا۔ اسرائیلی فوج نے نہ صرف گھروں کو تباہ کیا بلکہ اسپتالوں، سکولز اور پناہ گزین کیمپس کو بھی نہیں بخشا۔ یہ حملے انسانیت کی بنیادوں پر حملہ تھا، جہاں معصوم انسانوں کا خون بہایا گیا اور لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے۔ اسرائیل کی حکومت نے اپنے جنگی جرائم کو چھپانے کے لیے بے گناہ فلسطینیوں پر الزام تراشی کی، انہیں دہشت گردی اور عسکریت پسندی کے رنگ دے کر عالمی برادری کی نظر میں فلسطینیوں کو مجرم دکھانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن جب حقیقت سامنے آئی تو دنیا نے دیکھا کہ یہ ایک طاقتور فوج کی بربریت تھی جو بے گناہ شہریوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ ایسی حالت میں اسرائیل کی طرف سے ہونے والے حملے نے نہ صرف ایک جنگی جرائم کا سبق سامنے دکھایا بلکہ ایک انسانیت سوز اقدام کا تذکرہ کیا جس کا کوئی جواز نہیں تھا۔ ان حملوں نے غزہ کی عوام کو نہ صرف جسمانی طور پہ توڑ ڈالا بلکہ ان کی روح تک کو مٹا دیا گیا۔ یہ جنگ فلسطینیوں کی زندگیوں کا سب سے سنگین اور تلخ باب بن چکی ہے، جس میں اسرائیل کی بربریت اور ظلم کا کوئی بھی پیمانہ پورا نہیں ہوتا۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، غزہ کی بستی پر موت کی گرج اور تباہی کے بادلوں کا سایہ آخرکار تھما جب جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا، مگر وہ زمین جو کبھی سمندر کی ہوا میں جھومتی تھی اب 15 ماہ کی جنگ کی کہانی سناتی ہے۔ ایک ایسی کہانی جس میں ہر گلی، ہر مکان اور ہر دل پر تباہی کے نشان موجود ہیں۔ جب 7 اکتوبر 2023 کو یہ معرکہ بھڑکا، جب حماس نے اسرائیل کی سرحد کو عبور کرتے ہوئے غیر معمولی حملہ کیا جس میں 1200 اسرائیلی ہلاک ہوئے، 251 یرغمال بنے، اس کے بعد اسرائیل کی فضائی اور زمینی کارروائیاں غزہ کی فضا کو خون کے دھوئیں سے رنگین کر گئیں۔ حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کے مطابق اس جنگ میں 46,600 سے زائد فلسطینی اپنی زندگیاں کھو چکے ہیں، لیکن آسٹریلوی میڈیا یہ بیان کرتا ہے کہ حماس کا وزارت صحت ریکارڈ رکھنے میں ناکام رہا اور یہ شہادتیں 2 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہیں۔ اسرائیل کا دعویٰ یہ تھا کہ اس کا ہدف حماس کی فوجی اور حکومتی طاقت کو جڑ سے اکھاڑنا تھا، مگر ان شہادتوں اور تباہ کاریوں کے بیچ یہ معاہدہ آیا جس نے ایک لمحے کے لیے تباہی کی گونج کو خاموش کیا، مگر زمین کی چیخیں اب بھی سنی جا سکتی ہیں۔ شمالی غزہ کی گنجان آباد گلیاں اور بلند عمارتیں جہاں زندگی کبھی معمول کے مطابق چلتی تھی، اسرائیلی حملوں کی لپیٹ میں آ کے راکھ کا ڈھیر بن گئیں۔ اسرائیلی حکام کا دعویٰ تھا کہ ان علاقوں میں حماس کے جنگجو عام شہریوں کے درمیان چھپے ہوئے ہیں اور وہیں سے بیت حنون جیسے قصبے کی بربادی کا آغاز ہوا۔ وہ قصبہ جو سرحد سے صرف 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا، جنگ کی پہلی آگ کا نشانہ بنا اور تباہی کی ایک دردناک مثال بن گیا۔ شمالی غزہ کے شہری مراکز پر مسلسل بمباری اور آخرکار اکتوبر کے اختتام پہ زمینی کارروائیوں نے اس علاقے کی ہر گلی، ہر عمارت کو خاک میں ملا دیا۔ اسرائیلی فوج نے شہریوں کو حکم دیا کہ وہ وادی غزہ کے جنوب میں منتقل ہو جائیں، مگر ان لوگوں کے لیے جنوب بھی محفوظ نہ رہا۔ لاکھوں افراد جو اپنی جانیں بچا کر جنوب کی طرف گئے، وہاں بھی فضائی حملوں کی زد میں آئے۔ نومبر کے اختتام تک جنوب کے کئی علاقے شمال کے کھنڈرات سے مختلف نہ تھے۔ وہ زمین جو کبھی زندگی کی گواہ تھی اب ملبے کے ڈھیر اور خاموشی کی گونج بن چکی تھی۔ یہ ایک ایسا سانحہ تھا جہاں شمال اور جنوب کے درمیان کوئی فرق نہ رہا، ہر جگہ تباہی ایک ہی زبان بول رہی تھی۔ دسمبر کے اوائل میں خان یونس جو کبھی غزہ کی امیدوں اور خوابوں کا مرکز تھا، اسرائیلی زمینی کارروائیوں کا نیا ہدف بن گیا۔ جنوبی اور وسطی غزہ پر بمباری کی شدت میں اس قدر اضافہ ہوا کہ ہر گلی، ہر عمارت اور ہر گھر جو ہے وہ جنگ کے شعلوں میں لپٹ گیا۔ خان یونس 15 ماہ سے جاری اس تنازع نے غزہ کی پٹی کو ایک اجڑے ہوئے منظر میں بدل دیا۔ CUNY گریجویٹ سینٹر اور اوریگون اسٹیٹ یونیورسٹی کے ماہرین کے مطابق سیٹلائٹ ڈیٹا کے تجزیے نے ایک المناک حقیقت کو بے نقاب کیا۔ غزہ کی 60% عمارتیں یا تو مکمل طور پہ تباہ ہو چکی ہیں یا ناقابل رہائش بن چکی ہیں۔ غزہ شہر جو کبھی روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا، تباہی کی سب سے بھیانک تصویر پیش کرتا رہا۔ جنوری تک نصف سے زیادہ عمارتیں صفائے ہستی سے مٹ گئیں۔ باقی ماندہ عمارتیں خستہ حال کھنڈرات کے سوا کچھ نہیں رہیں۔ یہ وہ شہر تھا جہاں زندگی کا کبھی شور تھا، لیکن اب صرف خاموشی، ملبے کی گونج اور تباہی کی آہیں باقی ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ نے غزہ کی تباہی کی جو تصویر پیش کی وہ دل دہلا دینے والی ہے۔ 90% سے زیادہ رہائشی یونٹ جو کبھی زندگی کی گرمجوشی اور خوشیوں کے گواہ تھے اب ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں۔
1,60,000 मकानात मुकम्मल तौर पर नीस्तो नाबूद हो गए, 2,76,000 घरों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा या नाकाबिले रिहाइश बन चुके हैं। इस तबाही के दरमियान हमास की जानिब से इजराइल पे हज़ारों रॉकेट दागने का सिलसिला जारी रहा, और ये हमले उस वक्त भी हो रहे थे जब उनके इत्तेहादी इजरायली अफवाज के खिलाफ ज़मीनी जंग लड़ रहे थे। हमास, जिसे इजराइल, बरतानिया और दीगर कई ममालिक ने दहशतगर्द तंजीम करार दिया था, अपनी कार्रवाइयों के जरिए उसने अपने आप का दिफा किया, जिसने खत्ते को मौत और बर्बादी के अंधेरे में इजराइल के हमलों की सूरत में धकेला। गजा की हालिया जंग से पहले वहां की हालत भी बहुत मुश्किल थी, जहां जिंदगी गुजारना भी एक चैलेंज था। लोग कहते हैं कि हमास ने हमला क्यों किया। सोचिए, इजराइल और मिस्री इंतजामिया जब इस बात का फैसला कर चुकी थी कि किसको इलाके में दाखिल होने की इजाज़त है और किसको नहीं, और दोनों ममालिक ने उसकी वजह सिक्योरिटी अपनी हिफाजत को करार दिया हो। आलमी बैंक के मुताबिक गजा की 2/3 आबादी गुर्बत में जिंदगी गुजार रही थी और हज़ारों अफराद अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम पनागुज़ीन कैंप्स में मुकीम थे, और वहाँ अस्पताल, स्कूल और दुकानें तो मौजूद थीं, लेकिन उन तक रसाई भी मुश्किल थी। तो ऐसे में वो क्या करते? गजा की ज़मीन बहुत महदूद थी, सिर्फ 41 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी। उसके इर्द गिर्द इजराइल और मिस्र की बंद सरहदें थीं। अब उस इलाके का ज्यादातर हिस्सा रिहाइश के काबिल नहीं रहा। गजा का पूरा जिला तबाह बर्बाद हो चुका है। ज़रई ज़मीन जहां कभी ग्रीन हाउसेस थे, इजरायली फौज के छापों और भारी फौजी गाड़ियों के ज़ेरे असर रेत और मलबे में तब्दील हो गई। जंग से पहले गजा की 22 लाख आबादी में से ज्यादातर उसके अहम शहरों जैसे रफा, खान यूनस, देरुल बला और गजा शहर में रहते थे, जिनका मजमूई तौर पर 7,75,000 अफराद पर मुश्तमिल कबीला था। लेकिन अब तकरीबन पूरी आबादी बेघर है। इजराइल की हिकमत अमली की बार बार तब्दीली की वजह से मुतअद्दिद फ़लस्तीनी खानदानों को अपने घरों से बार बार नकल मकानी करना पड़ी। इब्तदा में शिमाल के इलाकों के लोगों को वादी गजा के जुनूब में मुंतकिल होने के लिए कहा गया, और बाद में जुनूब में इनखला का ऐलान कर दिया गया। सेटेलाइट तस्वीर में मिस्र की सरहद के करीब ज़रई ज़मीनों में बेघर अफराद के लगाए गए खैमों का एक वसी मंजर देखा जा सकता है, जहां इजराइल ने अक्टूबर में जिसे ह्यूमैनिटेरियन जोन करार दिया था, लेकिन फिर वहीं पे हमले शुरू कर दिए थे। इजराइल ने मई में रफा में अपनी ज़मीनी कार्रवाइयाँ शुरू करने के बाद खान यूनस और देरुल बला के कुछ हिस्सों को शामिल करने के लिए ह्यूमैनिटेरियन जोन में तोसी की, जहां 10 लाख से ज़ायद अफराद पनाह लिए हुए थे। लेकिन उसके बाद उस इलाके की हुदूद में बार बार कमी की गई, क्योंकि इजराइल ने उन इलाकों पर अपने हमलों का निशाना बनाना शुरू किया। और इजराइल का यह कहना था कि हमास के लोग बेघर होने वाले अफराद के दरमियान छुपे हुए हैं, यही वजह थी कि वो इलाके निशाना बने। लेकिन अगस्त में अक़वाम मुत्तहिदा ने अंदाज़ा लगाया कि 12 लाख से ज़्यादा अफराद अलमवासी में पनागुज़ीन है, जहाँ बुनियादी ढांचे और सहूलियात का शदीद फुकदान है। उस इलाके का रकबा तकरीबन 7 किलोमीटर मुरबा यानी 2.7 मुरबा मील था। हालांकि पहले ये 72 किलोमीटर यानी 27.8 मुरबा मील पर मुश्तमिल होने का बताया गया था। वस्ती और जनूबी गजा में अक़वाम मुत्तहिदा की पनागाहों में भीड़ में एक तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है, और उनमें से बाद पनागाहों में गुंजाइश से कहीं ज़्यादा लोग आबाद हैं। दूसरे ख़ानदान खैमों में या आर्जी पनागाहों में हैं या खुले इलाकों में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। आलमी इदारा इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन यानी IPC के मुताबिक कहत का सामना करने वाले अफराद की तादाद बढ़ के 18 लाख तक पहुँच चुकी है, जिनमें से तकरीबन 1,33,000 अफराद शदीद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। सितंबर 2024 से अगस्त 2025 तक के तजिए में यह खबरदार किया गया है कि जंग शुरू होने से कबल की निस्बत शदीद ग़िज़ाई किल्लत की सतह 10 गुना ज़्यादा हो जाएगी। मौजूदा जंग से पहले भी गजा की तकरीबन 80% आबादी जो थी वो इंसानी इमदाद की मोहताज थी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 7 अक्टूबर के बाद इजराइल और मिस्र की गुज़रगाहों को बंद करने के बाद तकरीबन 10 रोज़ तक इमदादी सामान की फराहमी मुकम्मल तौर पर रुक गई थी। लेकिन जनवरी में रोज़ाना तकरीबन 50 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल हो रहे थे, और इजराइल अक़वाम मुत्तहिदा के एदाद शुमार से इख्तलाफ करता था। मार्च में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा कि गजा में खुराक की ज़रूरियात पूरी करने के लिए रोज़ाना कम अज़ कम 300 ट्रक्स की ज़रूरत होगी, ताकि खुराक की फराहमी और तकसीम मुमकिन हो सके। अक़वाम मुत्तहिदा के अहदेदारों ने गजा की मौजूदा सूरत हाल का ज़िम्मेदार इजरायली फ़ौज की इमदाद की तरसील पर पाबंदियों, जारी कशीदगी और अमन अमान की खराब सूरत हाल को करार दिया। इजराइल का कहना था कि गजा और उसके इर्द गिर्द फराहम की जाने वाली इमदाद की मिकदार की कोई हद नहीं है, और वह अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों को रसद की तकसीम में नाकामी का जिम्मेदार ठहराता है। उसमें हमास पर इमदाद चोरी करने का इल्ज़ाम भी आयद किया गया, जिसे हमास ने कुली तौर पर मुस्तरद किया। इस तनाज़े ने गजा की मईशत पर भी तबाकुन असरात मुरतब किए। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि 2024 की पहली तिमाही में गजा की मईशत में 86% कमी आई, जो कि रिकॉर्ड पर सबसे बड़ा मुआशी तनज़्ज़ुली का शिकार होना है। रिपोर्ट में कहा गया कि तकरीबन 100% आबादी, जो कि जंग से पहले 64% थी, अब गुर्बत में जिंदगी गुजार रही है। बुनियादी सामान की कीमतों में तकरीबन 250% का इजाफा हो चुका है।
जबकि UNCTAD के मुताबिक जंग की वजह से होने वाले नुकसानात का तखमीना 18.5 अरब डॉलर है, जो 2022 में गजा की मजमूई कौमी पैदावार यानी GDP से तकरीबन 7 गुना ज्यादा है। और अक्टूबर में इदारे ने मतनब्बे किया था कि जंगबंदी के बाद भी गजा की मईशत को 2022 की सतह पर बहाल करने में 350 साल लगेंगे, बशर्त यह कि वो 2007 से नाफिज मुआशी और नकलो हरकत की पाबंदियों के तहत ज्यादा तेजी से तरक्की करने के काबिल ना हो। गजा के कई तिब्बी मराकज नुकसानात और रसद की कमी के सबब काम करने से कासिर है। इजरायली फोर्सेस ने कई अस्पतालों पर छापे मारे हैं और उन पर इल्जाम आयद किया कि हमास ने उन्हें फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। गजा शहर का अल शिफा अस्पताल, जो कभी गजा का सबसे बड़ा तिब्बी मरकज हुआ करता था, अब तबाह हो चुका है। ताहम उसने अपने शोबा हादसात को दोबारा फाल किया। इजरायली दिफाई अफवाज का कहना था कि उसने सैकड़ों ऐसे लोगों को शहीद किया या गिरफ्तार किया और उन्हें 2 बड़े ऑपरेशंस के जरिए पूरे अस्पताल में हथियार और अहम खुफिया मालूमात मिली थी, लेकिन उसकी कोई भी सदाकत पे मबनी रिपोर्ट शाया नहीं की गई। जंग की वजह से पैदा होने वाले मलबे और धमाकाखेज मवाद को साफ करने में 21 साल का तवील वक्त लग सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंग्रैंड एंडरसन ने यह कहा है कि गजा में माहौलियाती नुकसानात में इजाफे से वहां के लोगों को न सिर्फ शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, बल्कि उनकी बहाली में भी कई दहाइयां लग सकती हैं। ये सूरत हाल गजा के अवाम के लिए एक और संगीन चैलेंज बन चुकी है। इजरायली हमलों में इस्तेमाल होने वाले बारूद और फौजी साजो सामान का हजम और नौइयत हमास के हमलों के रद्देमल में बढ़ता गया। 2023 के अक्टूबर में शुरू होने वाली जंग के दौरान इजराइल ने हमास की अस्करी सलाहियतों को महदूद करने के लिए फजाई हमलों और जमीनी कार्रवाइयों में बड़ी तादाद में बारूद और दीगर फौजी सामान इस्तेमाल किया। इजरायली फौज ने हमास के ज़ेरे इस्तेमाल मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाने के लिए भारी बमबारी की, जिसमें एयर स्ट्राइक, आर्टिलरी और टैंक हमले शामिल थे। इजराइल ने हमास के ज़ेरे ज़मीन सुरंगों और असलहा ज़ख़ीरा करने की जगहों को निशाना बनाने के लिए बहुत ज़्यादा बारूद इस्तेमाल किया, जिन्हें हमास ने अपने अस्करी मकासद के लिए तैयार किया था। इजराइल के मुताबिक हमास ने अपने हमलों में रॉकेट और गोले इस्तेमाल किए, जो इजराइल के मुख्तलिफ शहरों में फायर किए गए, जिसकी वजह से इजराइल अपने दिफा में मजीद ताकतवर हमले करता रहा। इसके अलावा इजराइल ने हमास के रहनुमाओं के खिलाफ खुसूसी ऑपरेशंस किए, जिनमें बड़े पैमाने पर फजाई हमले किए गए, बमबारी शामिल थी। उसके नतीजे में हमास की जंगी सलाहियतों को कमजोर करने के लिए बारूद का इस्तेमाल किया गया और जंग के दौरान इस्तेमाल होने वाले असलहे और बारूद की मिकदार मुसलसल बढ़ती गई। इजराइल की दिफाई अफवाज ने जंग के इब्तदाई महीनों में 20,000 से ज्यादा फजाई हमलों की इतला दी और उन हमलों का मकसद इजराइल के मुताबिक हमास के ज़ेर ज़मीन सुरंगों, असलहा ज़ख़ीरा करने की जगहों, मिसाइल लॉन्चर सिस्टम्स और अस्करी रहनुमाओं को निशाना बनाना था। और इस दौरान इजराइल ने 2000 से ज़ायद अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया, जिनमें रॉकेट फायरिंग की जगह बमबारी के मकमात और हमास के अहम रहनुमा शामिल थे। लेकिन हमास ये कहता रहा कि गरीब और मफलूकुल हाल लोगों को निशाना बनाया गया है। ये फ़ज़ाई हमले इजराइल की बर्बरियत का एक अहम हिस्सा थे और इन हमलों ने गजा के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद मुतासर किया, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। हिजबुल्लाह और हौसी बागियों के मुतअद्दिद रहनुमाओं को निशाना बनाया गया। हमास के रहनुमाओं में याहिया अल सिंवार, इस्माइल हनिया और मोहम्मद अल ज़ैफ को निशाना बनाया गया। इजराइल ने हमास की अस्करी शाख के अहम रहनुमाओं को शहीद करने की कोशिश की, जिनमें अबू हफ्स और नासिर अल अवी शामिल थे। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का तज़किरा भी अहम है, क्योंकि इजराइल ने उनके खिलाफ मुख्तलिफ धमकियां दी और फिर उनको निशाना बनाया और वो शहादत के मरतबे पर फाइज हुए। हिजबुल्लाह के दीगर रहनुमाओं में हुसैन बदरुद्दीन और समी शहावी भी शामिल हैं, जिन्हें इजराइल के फ़ज़ाई हमलों में शहीद करने की कोशिश की गई। यमन में हौसी रहनुमाओं में अब्दुल मुल्क अल हौसी और दीगर कमांडर इजराइल के हमलों के निशाने पर आए। इन कार्रवाइयों का मकसद इन ग्रुप्स की अस्करी सलाहियतों को कमजोर करना था। लेकिन अब अमन मुआहिदे के बाद सूरत हाल देखने के काबिल है कि क्या बनेगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।